Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So today we have seen Union Bank of India, AM Credit and AM IT vacancies. On AM Credit, I have already posted a separate video. So in this video, we will cover AM IT. I have segregated both the videos so that there is no confusion because set of candidates will be different. Some people, those are eligible for credit, may not be eligible for IT, and IT, those are eligible, may not be eligible for credit. So we have to be very, very careful. Now, first thing I will advise for all such type of examination, because these are unique exams, you must go through the PDF in detail before you apply. And I have placed the PDF on our Telegram channel for your convenience. Telegram channel link is available in description box. If you are not able to see the link, you can make a comment. I will provide the link again. Okay, so now what is the qualification? That is question asked. Am I eligible? I have done this thing. So they have given very, very exhaustive list of qualification that will be eligible for the examination. And if you have a qualification different than this, in such cases you have to make inquiry to the concerned bank, because we can only discuss whatever is available on record. Whether your degree is eligible or not, if it directly fits into this, fair. If it does not fit into this directly, you must inquire from the bank concerned. So they have mentioned BE, BTech, MCA, MSc IT, MS, MTech. 5 years integrated degree in computer science, electronics and communication, and they have said it can be in machine learning and AI oblique cyber security. So these are the qualifications they have mentioned. Those are eligible for the examination. And for age criteria, the age will be reckoned as on 1st April 2025. This is a very important date, although notification is of today, but the cutoff date for age is 1st April. Okay. Then educational qualification. For educational qualification, they have put a separate date, and this separate date is 20th of May 2025. That means if you have already appeared in the examination and your result is awaited, this result must be declared before 20th of May 2025. So if your result date is after that, you are not eligible. So you can wait for your result, then apply, because this is the last date of examination, last date of filling the application also. Or you want to fill the form right away, then make sure that your result comes by 20th of May 2025. And again, the examination pattern is online exam, group discussion, and personal interview. And based on all these three things, they will make a final merit. Based on the merit, you will get the job. And another question some people have asked, what is the location of job? They have not mentioned. Normally, all technical officers or specialist officers like IT officers or AMIT, these are all India vacancies. So you have to be prepared to work anywhere in India. That is the normal way when they make the recruitment. So they have not mentioned place of job. Some people have asked this question, that's why I have covered. Still, I will advise, go through the PDF carefully before applying. गॉड ब्लेस यू ऑल। अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट और असिस्टेंट मैनेजर आईटी की आज वैकेंसीज आई हैं। इसके ऊपर आपके कुछ प्रश्न थे और मैंने कहा था कि मैं डिटेल में इस पर चर्चा करूँगा। एएम आईटी के लिए हम इसमें चर्चा कर रहे हैं और एएम क्रेडिट के लिए मैंने अलग से वीडियो डाल दी है, उसको आप देख सकते हैं। अब पहली बात तो आपको क्या करनी है कि इस पीडीएफ को, जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ है, उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जितनी मर्जी हम सावधानी बरतें, जितनी मर्जी कोशिश करें, सारी बातें वीडियो में कवर नहीं हो सकती है। वीडियो का केवल मकसद मुख्य मुख्य बातों को आपको अवगत करवाना है। डिटेल आपको हमेशा पीडीएफ से पढ़नी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अप्लाई भी कर बैठते हैं, एग्ज़ाम भी दे बैठते हैं,
और जब फाइनल स्टेजेस तक पहुंचते हैं पता लगता है आप एलिजिबल ही नहीं है। तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स होते हैं, इसके अंदर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो जो नोटिफिकेशन में बताई क्वालिफ़िकेशंस हैं वो मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन है और उसके अंदर आपको प्रश्न करना है तो वो आपको कंसर्न बैंक से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाएंगे कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर इसके अंदर लिखी हुई क्वालिफ़िकेशन में से हो तो आप एलिजिबल हो, और कोई क्वालिफ़िकेशन आपकी सिमिलर है या लिखी हुई नहीं है इसके अंदर, तो आपको कंसर्न बैंक से चेक करना पड़ेगा कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मेंशन की गई हैं वो हैं बी.टेक, एमसीए, एमएससी आईटी, एमएस, एमटेक। इसके अलावा बताया गया है 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मशीन लर्निंग एंड आई एंड साइबर सिक्योरिटी। तो इनमें से अगर आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा उन्होंने कुछ डिज़ायर चीज़ें भी बताई हैं। डिज़ायरेबल का मतलब होता है कि हों तो अच्छा है, उसमें वो इंटरव्यू में कई बार प्रेफरेंस देते हैं। अगर नहीं भी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा, क्योंकि वो बहुत लंबी लिस्ट है और कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी। इसके अंदर मुख्य चीज़ समझने की ये है कि इसके अंदर एक तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, साथ में ग्रुप डिस्कशन है, साथ में पर्सनल इंटरव्यू है। इन तीनों फेजेस में जो आपके स्कोर्स होंगे उनको जोड़कर मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होगी। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी मिनिमम मार्क्स लेने ज़रूरी हैं, ग्रुप डिस्कशन में भी और पीआई में भी। इसके बारे में अलग से भी हम डिस्कशन करेंगे, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, कैसे तैयारी करें। अभी मैं इसके अंदर जो मुख्य बिंदु हैं वो हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत लंबी डिस्कशन हो जाती है और फिर मुख्य बातें छूट जाती हैं। एज का क्राइटेरिया इसमें मैंने आपको बता ही दिया है, 1 अप्रैल 2025 को रखा गया है, और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का जो कट ऑफ रखा गया है 20 मई 2025। एक बार मैं फिर आपको बार बार ये याद दिलाऊंगा कि डिटेल ज़रूर पढ़िए, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने देखा कई कैंडिडेट आखिरी स्टेज तक इस तरह के एग्ज़ाम्स में पहुंच गए और वहां जाके उनको पता लगा कि वो तो क्वालिफाई मतलब उनकी क्वालिफ़िकेशन थी ही नहीं, और फिर बहुत अफसोस होता है। इसलिए एग्ज़ाम को अप्लाई करने से पहले अपनी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एज, क्या आप एलिजिबल हैं, ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, इसको ध्यान से देखें। और जो लोग फाइनल ईयर में हैं, रिज़ल्ट अवेटेड है, रिज़ल्ट की डेट वाला जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है उसको भी बहुत ध्यान से देखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।